Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is type of strain gauge and strain measurement. In previous lecture, we see introduction to other type of strain gauge. Learning outcome of today's lecture are students are able to know the basic type of strain gauge and strain measurement method. The various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO2. Now we see the strain measurement method using load cell. तो पहला कौन सा स्ट्रेन है आपका एक्सियल स्ट्रेन. तो एक्सियल स्ट्रेन मतलब क्या होता है. इन दिस फिगर वी आर शोइंग द एक्सियल स्ट्रेन टू द स्ट्रेन गेज. When we are applying a force to here, the strain gauge that is mounted on this shaft is will get axially strained, मतलब along the axis. Axial strain will become the function of a net resistance. मतलब ये जो strain है that is directly proportional to the resistance of the strain gauge. Now second one is the bending strain. तो bending strain मतलब क्या होता है. When we are applying a force from here, these strain gauges that will be mounted here and here will be stretched. मतलब यहाँ पे कौन सा होगा टेंशन होगा और यहाँ पे क्या होगा कॉम्प्रेस होगा. ओके. And the bending strain is calculated as bending stress upon Young's modulus. Bending stress is equal to m divided by z. When we are applying the bending stress here or force here, force per unit area, that is the bending stress, or it is equal to m divided by z. Next one is the torsional strain. Measurement of torsional strain independent of axial or bending strain is as shown in figure. तो ये क्या है. दिस इज अ shaft on which the strain gauge 1, 2, 3 and 4 are mounted and we are applying the torque at the end of this shaft. Then what happens, some of this strain gauge 2 and 4 will be under stretching and 1 and 3 are under compression. In this arrangement, each 4 strain gauges are mounted on two side of shaft at 45 degree angle. मतलब ये चारों भी strain gauge जो रखे रहते हैं ये 45 डिग्री के एंगल पे रखे रहते हैं. In this arrangement, each gauges pair cancel the effect of tension and bending. इस जो अरेंजमेंट है यहाँ पे क्या करेगा, जैसे 2 है 2 4 को कैंसिल करेगा, 1 3 को कैंसिल करेगा ऑफ स्ट्रेन का जो भी इफेक्ट आएगा. And the torsional strain is the torsional stress upon modulus of elasticity. Torsional strain कैसे कैलकुलेट होगा from this arrangement, that is the torsional stress upon modulus of elasticity. Now we see semiconductor strain gauge. This is a figure of semiconductor strain gauge. So these gauges are produced from silicon and germanium crystal, in which certain amount of special impurities are added to impart certain characteristics. तो ये जो गेज बना रहता है सेमीकंडक्टर, ये किससे बना रहता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल. और इसमें क्या ऐड किया जाता है, इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है टू इम्पार्ट सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स. टू टाइप, निगेटिव और एन टाइप. ओके. इसके कितने टाइप है, 2 टाइप है, निगेटिव और एन टाइप. एंड निगेटिव एन टाइप मतलब क्या होगा, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा इन रिस्पॉन्स टू टेंसाइल स्ट्रेन. जैसे मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो इट विल गेट स्ट्रेच होने के बाद इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा. सेकंड वन इज द पॉजिटिव और पी टाइप. तो ये क्या होगा, जब मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा अंडर द टेंसाइल स्ट्रेन. बिकॉज मैं इस पे फोर्स जब अप्लाई करूंगा देन व्हाट हैपेंस, इट विल गेट स्ट्रेच. ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल राइजेस एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजेस. तो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा, राइज होगा. राइज मतलब जैसे मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा. एंड देयर इज अ चांसेस ऑफ अ ब्रेकिंग ऑफ दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर गेज. द गेज इन द फॉर्म ऑफ सिंगल रेक्टेंगुलर फिलामेंट. Okay, this is a gauge, single rectangular filament about 0.05 mm thick and 0.25 mm wide. तो इसका
जो थिकनेस कितना है 0.05 mm थिक और वाइड कितना है ये 0.25 mm वाइड एंड 1.5 mm टू 12 mm इन लेंथ। इसका लेंथ कितना है 1.5 mm टू 12 mm इन लेंथ। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे इसके जो दो कनेक्टर है ये कहाँ पे कनेक्ट किए जाते हैं टू द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस और फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ। एडवांटेज वेरी हाई सेंसिटिविटी इन कंपैरिजन ऑफ मेटल गेजेस। इसका सेंसिटिविटी क्या है बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द मेटल गेजेस। हाई गेज फैक्टर इन रेंज ऑफ 100 टू 200। इसका गेज फैक्टर क्या है वेरी हाई एंड लो हिस्टेरिसिस। नेक्स्ट वन इज द फॉइल टाइप स्ट्रेन गेज। तो फॉइल टाइप स्ट्रेन गेज मतलब क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ फॉइल ग्रिड ऑन प्लास्टिक बैकिंग बेस एज शोन इन फिगर। तो ये जो ग्रिड है ये किसकी है, इट इज अ फॉइल ग्रिड और इसको कहाँ पे माउंट किया जाता है ऑन द प्लास्टिक बैकिंग। मतलब ये जो नीचे का बेस है किसका है प्लास्टिक का है। द फॉइल ग्रिड ऑफ डिजायर्ड शेप इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रिंटेड सर्किट टेक्निक। तो ये जो फॉइल ग्रिड यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है ये कौन से टेक्निक से क्रिएट किया जाता है by the printed circuit technique. The desired grid pattern is first printed on a thin sheet. तो ये जो ग्रिड पैटर्न है क्या किया जाता है पहले यहाँ पे प्रिंट किया जाता है ओके ऑन थिन शीट ऑफ थिकनेस 0.005 mm ऑफ मेटल। मतलब मेटल के शीट पे इसको प्रिंट किया जाता है। देन द अनप्रिंटेड पोर्शन, मेटल का जो अनप्रिंटेड पोर्शन रहेगा वो क्या किया जाता है ईच अवे मतलब निकाला जाता है। देन वी आर गेटिंग दिस फॉइल ग्रिड। This construction allows the use of varying cross section throughout the grid length. तो ये प्रिंटिंग टेक्निक से क्या होता है आप डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल ग्रिड का यूज कर सकते हो यहाँ पे। The long area can be provided at the end where the lead connection are made. तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाता है लॉन्ग एरिया प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे लीड कनेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। These gauges have more surface area to compare to wire type gauges and more heat dissipation. तो इसका जो सरफेस एरिया है अदर टाइप ऑफ गेजेस से क्या है ज्यादा है ओके टू एंड मोर हीट डिसिपेशन। तो जैसे मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो हीट क्या होगा मोर डिसिपेट होगा थ्रू आउट दिस एरिया। तो मेटल एंड अलॉय यूज फॉर फॉइल एंड निक्रोम एंड कॉन्स्टेंट। तो जो मेटल यूज हो रहे हैं इसके लिए कौन से यूज हो रहे हैं निक्रोम एंड कॉन्स्टेंटल। Again same here, these leads are connected to the Wheatstone bridge circuit for measuring the strength or for measuring the resistance of this foil type grid. Advantage improved hysteresis. Hysteresis effect आपने देखा है फर्स्ट यूनिट में। बेटर फटिक लाइफ, इसका फटिक लाइफ क्या होता है अच्छा होता है। फटिक लाइफ मतलब क्या होता है बार बार इस पे आप प्रेशर अप्लाई करो देन अगेन रिमूव करो तो क्या होता है मेटल में एक फटिक आता है। तो यहाँ पे फटिक जो लाइफ है इसका क्या है बेटर है। डिसएडवांटेज कॉस्टलियर देन वायर टाइप गेजेस। इसका कॉस्ट क्या है ज्यादा है वायर टाइप गेजेस से। एप्लीकेशन एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ मशीन एंड स्ट्रक्चर। तो आप इसका एप्लीकेशन कहाँ पे कर सकते हो स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ मशीन एंड स्ट्रक्चर टू मेजर द प्रेशर एंड फोर्स। The unit outcome achieved in today's lecture are select the relevant instrument for vibration measurement of given job with justification. Summary of today's lecture. Today we see introduction of type of strain gauge and strain measurement method. Various program outcomes that we achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO. Important question asked in MSBT exam are explain strain measurement method using load cell with nits gauge, semiconductor strain gauge and explain in brief foil type strain gauge. In next lecture we start the 6th unit. Thanks for any query contact to this